Okay, verbs. Verb is a word or a combination of words that indicate action or state of being or condition. Words which show action, state of being, or condition. A verb is the part of a sentence that tells us what the subject performs. तो verb performance action के बारे में बताता है. They are the hearts of English sentences. Without verb, English sentences cannot be made. Okay, look at these examples. Jacob walks in the morning. Mike is going to school. Albert does not like to walk. Or Anna is a good girl. Now walks, going is going, does not like, and is. These are all examples of verbs and what kind of verbs written in front of them. Usual action, condition of action, negative action, and state of being. Now the forms of verb, the different forms that verbs have. We have heard about the three forms of the verb so far, maybe, present, past, and past participle, but these are in detail. The first one is the base form, the first form. But the base form means a verb without the addition of s or es, d or ed as we do in present and past tenses. So the base form is purely the verb without any addition. Then we have the infinitive, again the first form, but where to is used before the verb. The second form or the past tense of the verb is they played. Now played is the past form of the verb. Then we have the third form or the past participle form of the verb, eaten. Eat, ate, eaten. So the past participle. Then the present participle, that is the present continuous tense. I saw them playing with him today. And another is that when verb is in the form of present continuous or present participle with ing, and when that is used as a noun, तो वर्ब को हम वर्ब के साथ ing लगाएं और उसको फिर नाउन के तौर पर इस्तेमाल करें, वो जुमले में बतौर नाउन के काम करे, तो उसको फिर हम जेरेंट कहते हैं. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज. अब स्विम तो वर्ब है, लेकिन चूंकि स्विमिंग बन गया है यहाँ पे ये बतौर वर्ब नहीं बल्कि बतौर जेरेंट काम कर रहा है. जेरेंट मीन्स अ वर्ब विद ing that works as a noun. Reading is my hobby. Now reading here is a gerund. So these are the basic forms of verb. And the most important thing at our today's main topic is transitive and intransitive verb. What is a transitive verb? A verb can be described as transitive or intransitive based on whether it requires an object to express a complete thought or not. वो sentences जहाँ पे verb को object की जरूरत हो अपना sense complete करने के लिए, तो जब verb को object की जरूरत हो उसको हम transitive verb कहते हैं. So a transitive verb is one that only makes sense if it exerts its action on an object. Transitive verb वो होता है कि जो अपना एक्शन दूसरे को मुंतकिल करता है, और अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो ट्रांजिटिव वर्ब कोई मीनिंग या सेंस नहीं देता. ठीक है. इनट्रांजिटिव वर्ब विल मेक सेंस विदाउट वन. इनट्रांजिटिव वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती. फॉर एग्जांपल, एक ग्लास पानी ले आओ. ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. हाँ, या गिव मी अ पेन. अब यहाँ पे गिव और ब्रिंग के साथ ऑब्जेक्ट्स हैं, पेन है और ग्लास ऑफ वाटर है. लेकिन अगर इन ऑब्जेक्ट्स को मैं हटा दूं और सिर्फ कहूं कि गिव या ब्रिंग, तो वो फिर सेंस उसका नहीं होता कि क्या चीज, कौन सी चीज ले आऊं, कौन सी चीज दूं. तो वो वर्ब्स जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो उनको ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, और जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्लीपिंग. नाउ स्लीपिंग, ही इज वॉकिंग, ही रीड्स. अब ये ऐसे वर्ड्स हैं
कि जिनमें अगर ऑब्जेक्ट ना भी हो तो भी ये सेंस कंप्लीट कन्वे करता है और इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, कंप्लीट सेंस दे सकता है विदाउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट में टाइप करके पूछ सकते हो, ठीक है, ड्यूरिंग द लेक्चर। Okay, now let me read it out. The word transitive often makes people think of transit, which leads to the mistaken assumption that transitive and intransitive are just fancy ways of describing action and non-action. Transitive जो है, कहते हैं कि लोगों के ख्याल में कि ये लफ्ज ट्रांजिट से निकला है। ट्रांजिट का मतलब ट्रांसफर है, मूवमेंट है। तो लोग ये गलत मतलब उन इन अल्फाज से लेते हैं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब वो होगा जिसमें एक्शन होगा और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होगा जिसमें एक्शन नहीं होगा, लेकिन ये गलत है। आगे पढ़ते हैं कि बट दीज टर्म्स हैव नथिंग टू डू विद वेदर अ वर्ब इज एक्टिव और नॉट। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो वर्ड्स हैं, इनका वर्ब के एक्शन और नॉन एक्शन होने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। A better word to associate when you see transitive is transfer. A transitive verb needs to transfer its action to something or someone, which is known as an object. तो ट्रांजिटिव वर्ब में आपको एक्शन, वो जो एक्शन होता है वो ट्रांसफर होता है किसके पास? ऑब्जेक्ट के पास। वो कोई चीज भी हो सकती है और इट कुड आल्सो बी समवन। एंड इन इनट्रांजिटिव यू डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जी कौन सा वर्ब वो ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव है? Transitive verbs are not just verbs that can take an object, they demand objects. ठीक है? Without an object to affect the sentence that a transitive verbs inhabit will not be complete. अच्छा, आप इस एग्जांपल को आप देख लो कि प्लीज ब्रिंग कॉफी। नाउ इन दिस सेंटेंस द वर्ब ब्रिंग इज ट्रांजिटिव और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कॉपी है। अगर इसमें से आप ऑब्जेक्ट को हटा दो और फिर ये दूसरा एग्जांपल देख लो, प्लीज ब्रिंग। अब ये जो सेंटेंस है प्लीज ब्रिंग, इट डज नॉट मेक एनी सेंस बिकॉज देयर इज समथिंग मिसिंग। आप अभी शायद इतने एक्सपर्ट नहीं हो ग्रामर में, लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे कि प्लीज ब्रिंग, तो क्वेश्चन आएगा कि जी क्या चीज, व्हाट शुड आई ब्रिंग। ठीक है? और हु, तो ये वो चीज है कि जहाँ जो कि आपको आइडेंटिफाई करती है कि वेदर अ वर्ब इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। अ वर्ब which needs an object, that is a transitive verb, and a verb that does not require an object for its complete sense or meaning is an intransitive verb. ठीक है? ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई। अब ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानना कैसे है? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सा वर्ब intransitive है? Transitive verbs are not just verbs that can take an object, they demand objects without। अच्छा, ये तो हम पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो हैं जिनमें अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा, सेंस कंप्लीट नहीं होगा, एंड देयर विल ऑलवेज बी समथिंग मिसिंग, जिस तरह के हमने इस एग्जांपल में पढ़ा कि प्लीज ब्रिंग, तो ब्रिंग व्हाट और हु। ठीक? so this word bring requires an object, an object is the requirement of this verb bring। तो अब ऐसे अल्फाज जो कि ऑब्जेक्ट के बगैर
बिल्कुल मीनिंग नहीं देते, ऐसे वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। अच्छा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में एक ये भी जहन में रख लो कि जब आप एक्टिव और पैसिव में जाते हो, चेंज ऑफ वॉइस में, तो वहां पर फिर इंट्रांजिटिव वर्ब्स आपके काम नहीं करते। वो सेंटेंसेस जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब्स हो, सिर्फ वही आप एक्टिव पैसिव उनकी कन्वर्जन या उनको कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो एक्टिव पैसिव में तो हम कहते हैं कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो इंट्रांजिटिव के जो वर्ब्स हैं या जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, वो फिर चेंज नहीं हो सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं होता। अच्छा अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब्स की कुछ और एग्जांपल्स हैं। द गर्ल्स कैरी वाटर टू देयर विलेज। अब आप इस सेंटेंस में से वाटर हटा दो और फिर पढ़ो कि द गर्ल्स कैरी टू देयर विलेज व्हाट, तो वो फिर सेंस नहीं देता। तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, इन तमाम सेंटेंसेस में इन तमाम सेंटेंसेस में आप वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट देख लो, अगर वो ऑब्जेक्ट हटाने के बाद आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं रहता। अच्छा ये देखो, वॉन थ्रू द बॉल। अब वॉन थ्रू को आप देख लो, ये बॉल हटा दो तो वॉन थ्रू कोई सेंटेंस सही नहीं है। ठीक है। अच्छा, कुड यू फोन द नीबर्स। कुड यू, फोन की जगह आप फोन भी, फोन यहाँ पे बतौर वर्ब इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, मतलब है कॉल करना, कुड यू कॉल। नो। अब यहाँ से आप नीबर्स हटा दो ऑब्जेक्ट और फिर देखो कुड यू फोन, नो किसको, किसको कॉल करूं मैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जरूरी है। आई कॉट अ कोल्ड, आई कॉट, कोल्ड हटा दो, कोई मीनिंग नहीं है। शी लव्स रेम्बोज, रेम्बोज हटा दो, शी लव्स व्हाट, तो इसका फिर कोई सेंस नहीं बनता। और इसी तरह लीला कन्वेड द मैसेज, लीला कन्वेड, कन्वेड व्हाट, लीला ने ट्रांसफर किया क्या चीज, मैसेज, ठीक है ना, पहुंचाया मैसेज। तो ये वो कैरी, थ्रू, फोन, कॉट, लव्स और कन्वेड, ये वो वर्ब्स हैं इन सेंटेंसेस में जिनको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और इसलिए इनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं intransitive verb पे। An intransitive verb is the opposite of a transitive verb. It does not require an object to act upon. यहाँ पर हमें फिर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती और विदाउट ऑब्जेक्ट भी वो अपना सेंस कंप्लीट कन्वे करते हैं। फर्स्ट वन, एग्जांपल्स देखो। दे जंप्ड, कंप्लीट सेंटेंस। द डॉग ran, she sang, or a light was shining. None of these verbs require an object for the sentence to make sense, and all of them can end a sentence. ठीक है ना। Some imperative forms of verbs can even make comprehensible one word sentences. Imperative sentences, वो जब हम sentences पढ़ेंगे उसमें फिर हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन imperative sentences वो होते हैं कि जिन sentences में आपको कोई order, request, advice वो हो। मसलन रन, तख्ते, मंडकई। अब रन एक ऐसा वर्ब है कि जिसमें आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इसी तरह सिंग, तो सिंग, अगर आपसे कोई कहे कि सिंग, गाओ, तो ये वो वर्ब्स हैं इंट्रांजिटिव कि जो बगैर ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट सेंस कन्वे करते हैं। और यहाँ पे तो ये भी कहा गया है कि ये जो इम्पेरेटिव वर्ब्स हैं इनके साथ अगर आप और कुछ भी ना लगाओ, कबीर मार्टन व्हाट आर यू डूइंग, कबीर। अच्छा, a number of English verbs can only be intransitive, that is they will never make a sense paired with an object। अच्छा, कुछ अब ये कहते हैं कि intransitive verbs के साथ अगर आप